चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, एक कार्यकुशल व्यक्तिमत्व, लोकप्रिय नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहेब, सेक्रेटरी DAPRG V Srinivas, on behalf of Government of Maharashtra, Ma'am is felicitating the dignitaries. Additional Secretary Shri Amarnath ji, a very warm welcome. Thank you so much, ma'am. इसके बाद I request Shri V Srinivas sir to present a book to Honorable Chief Minister of Maharashtra. ये जो किताब है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं की किताब है, चुनी हुई कविताएं हैं. Thank you so much everyone. Again I welcome you to the city of Mumbai. और 2 दिन के ये ई-गवर्नेंस के कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डेज. आई रिक्वेस्ट श्रीमती सुजाता सोनिक मैम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ARON, to deliver the welcome address. माननीय सचिव DARPG केंद्र शासन श्री V श्रीनिवास जी, त्याचबरोबर माझ्या बरोबर इथे बसलेले केंद्र शासनाचे अतिरिक्त सचिव श्री अमरनाथ जी, समोर ऑडियन्स मध्ये या ठिकाणी उपस्थित आमचे वरिष्ठ अधिकारी क्षत्रिय सर, जैन सर, बक्षी सर, सुरेश कुमार सर, ऑल द एस्टीम्ड गेस्ट्स एंड पार्टिसिपेंट्स. सर आज या ठिकाणी 30 राज्य आणि युनियन टेरिटरीज कडनं जवळपास 100 लोक आलेले आहेत आणि त्याचबरोबर सर आपल्याकडे हायब्रिड मोडमध्ये हे कॉन्फरन्स आहे आणि म्हणून आपल्या राज्याचे सगळे अधिकारी देखील जॉईन आहेत. उपस्थित असलेले सर्व सेक्रेटरीज ऑफ गव्हर्नमेंट महाराष्ट्र, कलीग्स, विकास अधिकारी जी, दिलीप शिंदे, अनिल कुमार जी, I welcome you all to this 2-day conference on e-governance and good governance. सर आपल्याला माहिती आहे आपल्या अनुमतीने एक गुड गव्हर्नन्सची समिती स्थापन झाली होती आणि त्यांना आपण विशेष करून असं सांगितलं की त्यांनी गुड गव्हर्नन्स काय आहे, म्हणजे लोकाभिमुख प्रशासन कसं करता येईल, प्रशासन गतिमान कसा करता येईल, विलंब कसा टाळता येईल, लोकांना त्यांनी दिलेल्या निवेदनावरती उत्तर लवकरात लवकर कशा मिळेल आणि मंत्रालयामध्ये जे काम होते ते गतिमान कसा करता येईल याच्यावर आपण त्यांना विचार विनिमय करून एक अहवाल सादर करण्यासाठी जबाबदारी दिली आहे. त्याचं काम वेगात सुरू आहे सर. आणि त्याचबरोबर सर आपला जो मॅन्युअल ऑफ ऑफिस प्रोसिजर आहे, जे आपण नॉर्मली ज्या आधारावर आपण काम करतो, वी हॅव अ मॅन्युअल ऑफ ऑफिस प्रोसिजर ऑन विच वी डू अवर वर्क. सर 1963 साली आणि त्याचा मराठी अनुवाद 1994 साली झाला. त्याला आपण सर केंद्र शासनाच्या मंत्रालयाच्या मदतीने त्याच्यामध्ये श्रीनिवास साहेबांचा मोठा हातभार आहे. वी हॅव बीन एबल टू अपडेट इट अँड न्यू MOP हॅज बीन प्रिपेअर्ड, जेणेकरून आता आपण डिजिटल पद्धतीने काम कसं करू शकतो, ई-ऑफिसचा वापर कसा करू शकतो त्याच्यावरती जास्त करून भर आहे. This regional conference offers a great opportunity for national and state level officers, departments, agencies and bodies, including startups, to collaborate on a single platform and to share their ideas on e-governance, the best practices, the innovations and initiatives that have been taken up in different parts of the country, and Maharashtra can learn and also share these best practices with the delegates. I warmly welcome our Chief Secretary, Shri Manu Kumar ji, who had just arrived, and I request him to join us on the dais.
and I request Parag, my colleague, to kindly welcome him. And I request also to present a memento. Welcome to our conferencer. I request Parag to also give him a memento for this conference. Thank you. So as I was saying that this conference is meant to be a melting pot of all good ideas, sharing of best practices, innovations, and case studies of how we have been able to provide digital services, accessible services to our citizens. And as I was mentioning that we want to transition to a new version of e-office, and we would also like to ensure that whatever guidance the Good Governance Committee gives us on how to bring in more good governance in our systems, in our working, that we shall incorporate in the coming months. Apart from software technologies, optimum upgradation of hardware is equally important in governance. In this regard, Maharashtra government is actively working on coming up with new ways of working up to undersecretary level, and also have a new way of sharing of data, which e-office will help us to do in a very good way. So once again, ladies and gentlemen, I welcome you to this 2-day conference. We look forward to interacting with you and learning and sharing. And I now request respected Secretary of Government of India, DARPG Department, to please introduce more about the conference. Respected Shri Eknath Shinde ji, Honorable Chief Minister, Government of Maharashtra, Shri Manu Srivastav ji, Chief Secretary, Government of Maharashtra, Srimati Sujata Sonak ji, Additional Chief Secretary, Shri Amarnath ji, Additional Secretary DRPG, Shri Parag Jain, Nainutiya ji, Principal Secretary IT, former Chief Secretaries of Government of Maharashtra, Director General, IAPA, senior officials from representing 30 states and union territories, principal secretaries, secretaries to state governments, distinguished delegates. On behalf of DRPG and Government of India, I wish to thank the Honorable Chief Minister of Maharashtra for supporting the strong collaboration between DRPG and Government of Maharashtra in administrative reforms and good governance. I would also like to thank the Chief Secretary Maharashtra and the Additional Chief Secretary Srimati Sujata Sonak ji for their tireless commitment to make the collaboration successful. Special thanks to Sri Suresh Kumar ji and Sri S.S. Kshatriya ji, who visited DRPG in November 22 and proposed the collaboration, and also invited a DRPG delegation to Mumbai in December. Thanks to their leadership role, DRPG has been able to conduct this first regional conference with focus on e-governance in the year 2023. In pursuance of the meeting chaired by the Honorable Chief Minister in December 22, the DRPG and the Government of Maharashtra formulated a multi-pronged action plan for implementing next generation administrative reforms in the state of Maharashtra. This action plan envisaged convening a regional conference on e-governance in Mumbai, where the best practices can be presented by the award winners, academicians and industry captains to enable widespread dissemination and adoption. Adoption of e-office version 7.0 and the initiative for increasing efficiency in decision making through delayering, delegation and digitization of the state secretariat, updation of the manual of office procedure to enable the creation of a digital secretariat, documentation of best practices and administrative innovations, and formulation of a district good governance index.
I am happy to inform the Honorable Chief Minister that several rounds of meetings have been held between Government of India and Government of Maharashtra, and considerable progress has been achieved in each of these areas. Some of the developments will be presented in the course of this regional conference. Maharashtra is amongst the most advanced states of India with a strong governance model, strong secretariat structures and districts where officers have stood for innovation and commitment. The Good Governance Index of India recognizes Maharashtra's strong performance in several sectors: agriculture, commerce and industry, public infrastructure, social welfare and development, judiciary and public safety. Maharashtra stands well ahead of the Indian states in terms of the 58 parameters across 10 sectors. One of the objectives of this regional conference is to translate the Government of Maharashtra's core strengths in governance into e-governance to enable the digital transformation of institutions and digital empowerment of citizens. The other important national objectives of this conference are effective implementation of the National E-Services Delivery Assessment recommendations to create a movement for saturation of e-services across India, to enable the creation of digital institutions, particularly state secretariats, to adopt e-office, strengthen the linkages between startups, academics and government, strengthen state portals and service portals to enable seamless transformation for digitally empowering citizens. Over the next 2 days, 31 presentations will be made in 9 sessions, which makes it one of the largest ever regional conferences that have been held by Government of India. Some of the session chairs are very preeminent leaders: Dr. Srivatsa Krishna, Dr. S.N. Tripathi, Sri Amarnath, Sri S. Chokalingam, Sri S.S. Kshatriyaji, Sri Sandeep Singhal, Sri Vijay Kumar, Sri Abhishek Singh, Sri J.R.K. Rao are all leaders and would be chairing the sessions over the next 2 days. The Deputy Chief Minister of Maharashtra, Sri Devendra Fadnavis ji, will be addressing the plenary session on day 2. The knowledge and dissemination that will be shared over the next 2 days would help significant movement and momentum to e-governance in India. Thank you very much to Government of Maharashtra and to the Honorable Chief Minister and Chief Secretary for their support to DRPG. Thank you. Thank you very much, sir, for the introductory remarks. To begin the conference, let me request Srimati Sujata Sonik ma'am, ACS ARONM, Government of Maharashtra, to take us through the presentation on Manual of Office Procedure for Government of Maharashtra. Srimati Sujata Sonik ma'am. Dear dignitaries and participants, please allow me to speak in Marathi also. The slides are in English for the ease of communication with all our delegates from across the country, because our Chief Minister is here, so I would like to also speak a little bit in Marathi. So the slides are just coming up, and once again, very warm welcome to all the participants who have joined us online. Start the slides. सर, आता थोडक्यात आपण करणार काय आहोत त्याच्यावर मी बोलते. तर मागाशी जसं मी सांगितलं सर की हा ई गव्हर्नन्स किंवा हा ई ऑफिस जे आपण म्हणतो याचे फायदे काय आहे. तर याच्यामध्ये सर फायदे 4 आहे. एक म्हणजे जे जनता आपल्याकडे वेगवेगळी माहितीसाठी येते किंवा आपले निवेदनं घेऊन येते, त्यांना माहिती आरामशीर मिळेल अशा तऱ्हेने एक प्रयोजन आपल्याला करता येईल. त्याचबरोबर सर पारदर्शकता आपल्याला वाढवता येईल आणि आपले जे वेगवेगळे कार्यक्रम आहे, जनहिताचे कार्यक्रम आहे, त्याची माहिती आपल्याला जनतेपर्यंत पोहोचवता येईल. आणि जे आपल्याकडे निवेदन ग्रीवान्सेस जे येतात, म्हणजे लोक काहीतरी तक्रारी घेऊन येतात, त्याचा निपटारा देखील पटकन होऊ शकतो. कॅन यू लोड द स्लाइड्स प्लीज. बागुल, लोड द स्लाइड्स प्लीज. आणि सर आपल्याला माहितीच आहे की आपल्याकडे आपले सरकार हा पोर्टल आहे आणि आपले सरकारवरती
आपण जवळपास 387 असे ऑनलाईन सेवा दिलेल्या आहे आणि आतापर्यंत सर 13.5 करोड ॲप्लिकेशन्स आपल्याला आले आहेत, ज्याचा आपण निपटारा जवळपास 12.5 करोडचा निपटारा आपण ऑलरेडी केलेला आहे. सर एक नॅशनल ई गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट आहे, ते नॅशनल लेवलवरती प्रत्येक राज्य शासनाचा असेसमेंट करत असतात. त्याच्यामध्ये सर आपला जो सध्याचा जो क्रमांक आहे तो असा आहे की जो ॲक्सेसिबिलिटी आहे, म्हणजे लोकांना जी माहिती पाहिजे आपल्याकडनं ती माहिती सर त्यांना फारशी मिळत नाही. त्याच्यामध्ये 2019 पासून 21 पर्यंत 13% फक्त वाढ झाली आहे. आपल्याला हे सुधारायचे आहे सर. आपल्या जे वेगवेगळे पोर्टल्स आहे, जे आपल्या वेबसाईट्स आहे, त्याच्यावर जी माहिती आपण देतो सर, त्याच्यामध्ये ॲक्सेसिबिलिटी किंवा जी माहिती आपण पुटअप केलेली आहे त्याला अप टू डेट करणं, त्याला लोकांपर्यंत सगळे कार्यक्रमाबद्दल माहिती पाठवणं हे सर गरजेचं आहे. आता आपल्या राज्याचे बाकी अधिकारी पण आहे. अनेक वेळेला असा होतो सर की आपण कॅबिनेटमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेतो, त्याचे GR काढतो त्या दिवशी, परंतु ते शेवटपर्यंत जात नाही, खालीपर्यंत निर्गमित होत नाही आणि त्याच्यामुळे लोकांना माहीत पडत नाही की शासनाने काय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे. तर ते सगळं फास्ट ट्रॅक करण्यासाठी आपण ई ऑफिस आणि ई गव्हर्नन्सचा वापर करू. इज देयर एन इश्यू विथ द स्लाइड्स? At the same time, sir, आपण एक सेवा पंधरवडा पण केला होता. Srinivasji, I would like to bring to your kind attention that in October, actually in September, we started a major drive for grievance redressal. 14 important services across various sectors had been selected, and lakhs of applications received. Good response of our district administration. We actually continued this Pandravada almost till the end of November. And as the time went, from 75% disposal, we went up to 95-96% disposal. And this was because of the lag that had come during COVID, because of the lockdown and the slowdown that happened. लोकांचे कामं जे होत नव्हते, that we were able to successfully dispose of. Can you go to the next slide, please? सो सर हे जे नेस्डाचा मी बोलले आपल्याला इथे नाही दिसत आहे. सो दिस इज द नेस्डा रँक. गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सेवा पंधरवडा आय जस्ट टेल. नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड. येस, नाउ स्टॉप. सो सर आपल्या समोर समितीचे सर्व सन्माननीय सदस्य आणि चेअर आहे आज आपल्या बरोबर. आतापर्यंत सर 27 मिटिंगा झाल्या. या 27 मिटिंगामध्ये सर वेगवेगळे खात्यांनी आणि जिल्ह्यांनी विभागांनी जे केलेले काम आहे त्याचे बेस्ट प्रॅक्टिसेसचं डॉक्युमेंटेशन सुरू आहे आणि कशा पद्धतीने सिटीजन सेंट्रिक ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि डेटा ड्रिव्हन ॲडमिनिस्ट्रेशन. सर आपल्याकडे भरपूर असा डेटा आहे राज्यामध्ये, परंतु तो डेटा आपण वापरत नाही. वी डू नॉट यूज अवर डेटा सर टू सेट अवर पॉलिसीज. सो हे काम सर सध्या सुरेश कुमार साहेब आपले अध्यक्ष आहे या समितीचे, त्यांचे नेतृत्वाखाली आणि बाकीचे सर्व सदस्य, ज्याच्यामध्ये सर बांठिया सर आहे, स्वाधीन क्षत्रिय सर आहे, अजित कुमार जैन सर आहे, KP बक्षी सर आहे, यांच्या मदतीने सर हे काम जोरात सुरू आहे आणि एका महिन्यामध्ये आपण हे सगळे जे मॅन्युअल आहे सर ते तयार करून आपल्याला देऊ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सर आता आम्ही आपल्यासमोर काय काय आणणार या स्लाइडवरती हे दर्शवलेलं आहे. तर जसं की श्रीनिवास साहेबांनी आता सांगितलं, 1 डिसेंबरला सर ते आपल्याकडे इथे आले होते त्यांची टीम घेऊन आणि त्याच्यानंतर खूप बैठका झाल्या आमच्या आणि त्यांनी आम्हाला जे गायडन्स दिला त्याप्रमाणे सर हे सगळे कागद आम्ही 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये आपल्यासमोर मान्यतेला आणू. सर्वप्रथम सर उजव्या हाताला तो जुना 1963 सालचा मॅन्युअल दिसतो सर, त्याची एक कॉपी आम्हाला लॉ अँड ज्युडिशरीमध्ये सापडली. ते आता आम्ही अपडेट करतो सर. तो पहिला काम आमचा राहणार की स्टेटचा जो मॅन्युअल ऑफ ऑफिस प्रोसिजर आहे हे सर आपली एक प्रकारचे सर आपली कुंजी आहे. म्हणजे आपण जे काम करतो ना सर मंत्रालयामध्ये, फाईल कशी मूव्ह होणार, कोणी कोणाला पुटअप करणार, ही आपली कुंजी आहे सर एक प्रकारे. तर हे मॅन्युअल आपण अप टू डेट करणार सर आणि 2023चा मॅन्युअल आणणार. केंद्र शासनाचा जो मॅन्युअल आहे सर तो 2022चा आहे, म्हणजे त्याच्यानंतरचा हे आपला महाराष्ट्र राज्याचा 2023चा मॅन्युअल होईल. दुसरा सर समितीच्या मदतीने आपण एक मॅन्युअल ऑफ गुड गव्हर्नन्स करणार. म्हणजे गुड गव्हर्नन्स सर मेन त्याचा जो एक मूल वाक्य आहे तो असा आहे की लोकांना शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा मिळावा गतिमान पद्धतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने, ते म्हणजे गुड गव्हर्नन्स. तर त्याचा एक मॅन्युअल तयार होईल सर.
त्याचबरोबर सर NICचे सगळे वरिष्ठ अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहे. NICच्या मदतीने आपण प्रत्येक विभागामध्ये किती ई फाईल्स आहे, कसं चालतात काम, त्यांच्या एक ई ऑफिसच्या ॲनालिटिक्स पण करणार आहोत आणि ते देखील आम्ही सर आपल्या समोर वेळोवेळी आणणार. तो एक वेळचं काम नाही आहे सर, तो प्रत्येक महिन्याला आपल्याला पाहता येईल की किती फाईल जनरेट झाले आणि कुठे कुठे आहे. तसंच जर एक नवीन उपक्रम आपण घेतो ते म्हणजे डिस्ट्रिक्ट गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स. आतापर्यंत सर आपण काय करतो, आपण KRA ठरवतो, म्हणजे आपण एक मूल काही तत्व देतो विभागांना की आपण या मुद्द्यांवरती प्रोग्रेस केला पाहिजे. इथून पुढे काय होईल सर की सेक्टर वाईज म्हणजे कृषी आहे, इरिगेशन आहे, वॉटर सप्लाय आहे, हे जे मोठे मोठे विभाग आहे, महिला बाल कल्याण आहे, शालेय शिक्षण आहे सर, या सेक्टरसाठी आपण एक गुड गव्हर्नन्सचा इंडेक्स तयार करून ते देखील आपण सगळ्या विभागांना आणि जिल्ह्यांना देणार आहोत. आणि त्याच्यासाठी सर आपल्याला केंद्र शासनाच्या मदतीने एक सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स हैदराबादला आहे, त्यांच्या मदतीने आपण हे करतोय. आपलंही सर एक गुड गव्हर्नन्स सेंटर पुण्यामध्ये नियोजित आहे, त्याचं काम सध्या सुरू आहे. चोकलिंगम साहेब त्याला बघतायत, आपले DG यशदा. त्याच्यानंतर सर इम्पॅक्ट इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट म्हणजे जे काय आपण निर्णय घेतो, म्हणजे कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यानंतर ॲक्च्युली त्याची अंमलबजावणीपर्यंत किती वेळ लागतो, कुठे कुठे प्रॉब्लेम्स येतात, त्याचा एक इम्पॅक्ट इव्हॅल्युएशन देखील क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया हे एक केंद्र शासनाची यंत्रणा आहे सर, त्यांच्या मदतीने आपण करणार आहोत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सर आपले रूल्स ऑफ बिझनेस जो आहे, म्हणजे प्रत्येक मंत्रालयामध्ये फायलीचा निपटारा कसा व्हावा, कोणाची किती अधिकार आहे, हे जो रूल्स ऑफ बिझनेस आहे सर, हे सुद्धा नव्याने आपण तयार केले आहे. याच्यामध्ये एक नवीन विभागाचा समाविष्ट झाला आहे सर, जो आपण डिसेबिलिटीचा विभाग तयार केला आहे. आणि सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हा एक नवीन विषय आपण IT डिपार्टमेंटमध्ये समाविष्ट करतो सर. तर हे रूल्स ऑफ बिझनेस देखील आपल्यासमोर आम्ही आणू सर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आणि सर मॅन्युअलबद्दल मी आपल्याला सांगितलं ऑलरेडी, पण या मॅन्युअलने फरक काय पडणार ते मी आपल्याला थोडंसं तपशीलमध्ये सांगते. पहिला सर त्याचा फायदा आहे डिलेअरिंग, म्हणजे एक नसती किती पातळीवरून जाऊन आपल्यापर्यंत पोहोचणार हे आपल्याला आता ठरवायचं आहे सर. मुख्य सचिवांच्या मदतीने आपल्याला प्रत्येक विभागासाठी हे ठरवावं लागणार आहे की एक फाईल समजा जॉईंट सेक्रेटरीने पुटअप केली तर आपल्यापर्यंत यायला किती पातळीवरून ते येणार आहे. दुसरं सर डेलिगेशन ऑफ पॉवर्स, काही पॉवर जर खाली दिले तर प्रत्येक फाईल वरपर्यंत जाण्याची गरज नाही. आणि म्हणजे साधारण जे विषय रुटीनचे मॅटर असतात. डेस्क ऑफिसर सिस्टम सर केंद्र शासनाने ऑलरेडी त्यांच्याकडे घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे की सर त्यांच्या ना एक युनिफाईड सिस्टम आहे, म्हणजे एक विषय एकच डेस्क वरपर्यंत घेऊन जातो आणि त्याच्यावर निर्णय घेतो. आपल्याकडे कधी कधी ह्या फायली अनेक विभागांमध्ये जाते, तर डेस्क ऑफिसर सिस्टमबद्दल देखील मुख्य सचिव महोदयांच्या मदतीने आम्ही इनिशिएट करू सर. आणि डिजिटायझेशन म्हणजे हा जो मी मागाशी म्हटलं ई ऑफिस आपल्याला घ्यायची आहे, नवीन प्रणाली 7.0 व्हर्जन घेऊ आणि ई ऑफिस आपण सगळ्यांना सांगू की तुम्ही याचा वापरा. आणि याच्यामुळे काय होईल सर की काम जो आहे आपला अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होईल. आणि जो नव्याने आपल्याकडे रुजू होणारे अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग आहेत. श्रीनिवासजी, आय वुड लाईक टू इन्फॉर्म यू that Government of Maharashtra has launched a massive program of employing more people. So we have almost 15,000 recruitment going on. All these people are going to join Government of Maharashtra at various levels. So these new officers will be sensitized to use these digital systems right from the initiation. And this will improve our decision making, information file management. आणि सर एक महत्त्वाचा जो विषय आहे तो मी जरा आपल्या लक्ष त्याच्यावर वेधू इच्छिते. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. की याच्यामध्ये सर कॉस्ट सेव्हिंग किती होणार आहे. आता आपण बघा सर, आपल्या समोर माहिती टाकली आम्ही की आपल्या मंत्रालयामध्ये कितीतरी कपाट आहे, प्रत्येक फ्लोअरवरती खूप कपाट आहे आणि दरवर्षी जवळपास सर 1200 कपाटं आपल्याला 40 विभागांसाठी लागते. त्याचा खर्च जवळपास सर 1 कोटीपर्यंत जातो. आणि ऑफिस स्पेस आपली कमी 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 होत चालली आहे सर, म्हणजे जागाच नाही उरली. आता लोकांना बसायला जागा नाही आहे सर. आणि त्याचा मोल जर बघितला सर आपण की ते किती मूल्यवान जागा आपली कपाटांखाली गेली आहे. दुसरा सर आपण सिक्युरिटी करतो, म्हणजे हा सगळा रेकॉर्ड कोणीतरी लॉक करून ठेवतो ना सर, कोणाकडे तरी किल्ले आहे, त्याच्यावर खर्च सर जवळपास 1 कोटी रुपये होते. आणि जे सर पिओन लागतात आपल्याला, म्हणजे जे एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाला फायली घेऊन जातात आणि परत आणतात, त्याच्यावर जवळपास सर 2 कोटीचा खर्च होतो सर वार्षिक. आणि जो कागद आपण वापरतो सध्या ते 1 कोटीचा कागद आपण वापरतो सर. आणि म्हणजे 40 डिपार्टमेंट्समध्ये जर हे टोटल जर केला सर आपला, तर 4 कोटी रुपयाचा आपला खर्च आहे. म्हणजे आता जर डिजिटल सिस्टम आपण घेतले
तर एक नसती सर एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाला सहजपणे जाऊ शकते आणि गहाळ होणार नाही आणि कुठे प्रलंबित आहे हे सुद्धा पारदर्शक पद्धतीने दिसणार. त्यामुळे हे सगळं जर आपण केला सर तर आपल्याला जवळपास 32.5 कोटीचा फायदा दरवर्षी होणार आहे आणि हे पैसे याच्यापेक्षा कमी पैसे खर्च करून आपण आपलं हार्डवेअर इम्प्रूव्ह करू शकतो. तर येणाऱ्या दिवसामध्ये सर आपला हे इनिशिएटिव्ह राहणार आहे की आपण रिवाइज मॅन्युअल ऑफ ऑफिस प्रोसिजर आणू, एक गुड गव्हर्नन्सचा मॅन्युअल आणू, एक आपण सर ई ऑफिसचा नवीन व्हर्जन हातात घेऊ आणि इम्पॅक्ट इव्हॅल्युएशन करू. रूल्स ऑफ बिझनेस सर आपल्याला आम्ही सादर करू मान्यतेसाठी आणि ते कॅबिनेटला जातील सर. मॅन्युअल आपल्यापर्यंत येईल आणि ई ऑफिसद्वारे अगदी जिल्ह्यापर्यंत, म्हणजे महाराष्ट्र राज्य मोठा राज्य आहे सर, आपले 35 जिल्हे आहे आणि एक बाजू ते दुसऱ्या बाजू 1000 किलोमीटरचा असा मोठा व्याप आहे. तर या मोठ्या राज्यामध्ये सर आपण हे फ्रॉम मंत्रालय टू युनिट लेवल म्हणजे खाली सब डिव्हिजन तहसील लेवलपर्यंत आपण लिंकेजेस चांगले करू. आणि महत्त्वाचं सर आर्कायव्हिंग पॉलिसी केल्यामुळे आपले मंत्रालयामध्ये आणि इतर जे आपले शासकीय कार्यालय आहे जिथे जागा खूप रेकॉर्डमध्ये आहे सर ते सगळी रिकामी होईल आणि चांगल्या कामासाठी वापरता येईल. तर थोडक्यात सर मला आज आपल्याला ही माहिती द्यायची होती सर. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. Thank you so much, ma'am. It was really insightful. We are spending. It was really. आपने जब कहा कि 3 कोटी रुपए आपण 3.5 कोटी रुपए आपण खर्च करतो. That was really insightful. And Government of Maharashtra and Government of India are taking great efforts for this e-governance and digitization. Can we have a big round of applause for these efforts? Thank you so much. Moving ahead, we'll now proceed for the screening of a film on year-end review of DARPG, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India. Can we have the film, please? वॉल्यूम नहीं येत आहे. सुरू से करिए.
इसके पहले हम हेलो 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 साउंड प्लीज. Release of MGMG. Can we have the booklets, please? आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से इस जर्नल का इनॉग्रेशन हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है. Thank you so much, sir. Can we have the film now? महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आज आपल्या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले आहेत. मला वाटतं ही सगळ्यांसाठीच अतिशय आनंदाची आणि भाग्याची गोष्ट आहे. लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ जी शिंदे साहेब, इनसे मैं निवेदन करूंगी कि कृपया आपके विचार इस मंच पर. त्याच्या आधी आपण आदरणीय प्रधानमंत्री इस जो फिल्म है ईयर एंड रिव्यू, उसमें पीएम सर का मैसेज भी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम फिल्म प्ले करें. ये जो 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है, दिस इज इन 9 सेशंस एंड इट इज ऑन, वी ऑल नो इट इज ऑन ई-गवर्नेंस एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र is working on e-governance because digitization is a need of time. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की हल्ली अगदी लहान मुलापासून प्रत्येक जण, everybody needs digitization. It's a need of time. As ma'am has also mentioned that we are spending a lot of budget on papers and because of non-digitization. So we all are working on digitization, and of course we all are very much positive about this 2 days regional conference on e-governance, जहां से काफी हमें insights मिलेंगे और we can change the face and of course we can move ahead for the betterment. अभी हम फिल्म देखेंगे ईयर एंड रिव्यू ऑफ DRPG. इंडिया एट 100 ये रूटीन नहीं हो सकता है. ये आज का अमृत महोत्सव हमारा वो एक वाटरशेड होना चाहिए जिसमें अब 25 साल को एक इकाई के रूप में ही हमने देखना चाहिए, टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए. और हमने इंडिया एट 100 अभी से उसका विजन देख करके, और विजन देश में क्या वो नहीं, डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिस्ट्रिक्ट 25 साल में कहां पहुंचेगा. प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 2022 में कई अभूतपूर्व मुकाम हासिल किए. जैसे देश भर में मनाया जाने वाला सुशासन सप्ताह गुड गवर्नेंस वीक ने कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की है. प्रशासन गांव की ओर थीम के साथ ये अभियान पूरे देश में चलाया गया. इसकी सफलता आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि सिर्फ एक सप्ताह में 54 लाख लोक शिकायतों का निपटारा हुआ, 315 लाख आवेदनों पर सेवा प्रदान की गई, 982 सर्वोत्तम सुशासन प्रथाओं का प्रलेखन हुआ.
पिछले एक साल में कामयाबी की दूसरी मिसाल थी विशेष अभियान 2.0। ये अभियान सरकारी दफ्तरों में संस्थागत सफाई एवं लंबित मामलों के निपटारे के लिए था। 2 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच इस अभियान में केंद्र सरकार के 1 लाख से ज्यादा दफ्तरों और विदेशों में भारतीय दूतावासों ने हिस्सा लिया। इस दौरान दफ्तरों की 89 लाख वर्ग फीट जगह खाली की गई। इन जगहों से जो रद्दी चीजें हटाई गईं, उनसे 371 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। इस अभियान के दौरान 4,55,000 लोक शिकायतों का निपटारा भी किया गया। इस अभियान का आकार 2021 में चलाए गए अभियान से 21 गुना बड़ा था। सुशासन की ऐसी सभी कोशिशों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड हर साल दिया जाता है। सिविल सर्विसेज डे पर इस सम्मान के लिए नागरिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स बेहतर प्रशासन को प्रोत्साहित करने वाला एक और बड़ा पुरस्कार है ई गवर्नेंस पुरस्कार। सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई गवर्नेंस का अभियान केंद्रीय दफ्तरों से लेकर जिला स्तर तक चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य है नागरिकों और व्यवसायों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के वितरण में सुधार लाना। पूरे देश में सुशासन संभव हो, इसके लिए जरूरी है सरकार और उद्यमियों, नागरिकों के बीच नजदीकी और भरोसा। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर साल क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करती है। साल 2022 में ये सम्मेलन देश के 3 शहरों में हुआ। मई में श्रीनगर, जुलाई में बेंगलुरु और अगस्त में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हुआ। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन के तरीकों को सुलभ बनाने के लिए 2019 में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का आरंभ किया था। इसके जरिए विभाग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सेवाओं की प्रभावशीलता का आकलन करता है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट विभाग द्वारा द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स देश में सुशासन कायम करने के लिए जितने भी प्रयास हो रहे हैं, उसे आंकने का एक पारदर्शी माध्यम है गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी सुशासन सूचकांक। इसकी पहली रिपोर्ट सरकार ने 22 जनवरी 2022 को जारी की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के 10 सुशासन क्षेत्रों और 58 जिलों में बेहतर शासन का ब्यौरा था। ये भारत में किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी पहला जिला सुशासन सूचकांक था। सीपी ग्राम्स विभाग ने सीपी ग्राम्स में मामलों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय सीमा को कम करने के लिए प्रणालीगत सुधार प्रक्रिया शुरू की है। 10 चरणीय सुधार प्रक्रिया में अंतिम मील तक शिकायतों की ऑटो रूटिंग, AIML का लाभ उठाते हुए शिकायतों की तत्काल फ्लैगिंग की जाएगी। सीपी ग्राम्स पोर्टल अंग्रेजी और 22 दूसरी अनुसूचित भाषाओं में अब उपलब्ध है। मंत्रालयों, विभागों के प्रदर्शन की रैंकिंग भी की जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मासिक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। ई ऑफिस संस्करण 7.0 में माइग्रेशन 77 में से 66 विभागों ने ई ऑफिस के संस्करण 7.0 में काम करना शुरू कर दिया है। इनके अतिरिक्त 14 शीर्ष निकायों, 192 संबद्ध कार्यालयों और 59 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने नए संस्करण में काम करना शुरू कर दिया है। CSMOP केंद्रीय सचिवालय में कामकाज की रीढ़ है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर यानी CSMOP 2022। इसका 16वां संस्करण 5 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। 2 महीने बाद अक्टूबर में हिंदी भाषी क्षेत्रों की सुविधा के लिए पहला हिंदी संस्करण निकाला गया। इस तरह सुशासन और बेहतर नागरिक सेवाओं के प्रयास देश के साथ विदेशों में भी अपनी पहचान बना रही है। यही आजादी के अमृतकाल का लक्ष्य भी है। थैंक यू सो मच फॉर द फिल्म। और मूविंग अहेड, महाराष्ट्र के कार्यकुशल मुख्यमंत्री जो तेजी से निर्णय लेने के लिए और निर्णयों पर अमल करने के लिए जनता से नवाजे जाते हैं, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, इनसे मैं अनुरोध करती हूं कि ई गवर्नेंस पर आपके विचार कृपया प्रकट करें। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब।
आज के आजच्या ई गव्हर्नन्स क्षेत्रीय परिषदेमध्ये उपस्थित केंद्र सरकारचे DARPGचे सेक्रेटरी वी श्रीनिवासनजी, आमचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तवजी, ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुजाता सौनिक मैडम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पराग जैन, ॲडिशनल सेक्रेटरी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अमरनाथ जी, सर्व मान्यवर समोर आमचे स्वाधीन क्षत्रिय जी आहेत, बक्षी जी आहेत, सुरेश जी आहेत, जैन जी आहेत आणि सर्व मान्यवर, सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासन विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि 1 महीने पहले हम लोगों ने एक बैठक ली थी और उसमें तय किया था इस ई गवर्नेंस विभाग में हम ऐसा कुछ करें कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है उसका फायदा पूरे देश को हो, सभी राज्यों को हो। और 1 महीने के भीतर ही ये आज की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और हमारे महाराष्ट्र शासन के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। नेशनल और स्टेट के संगठनों को आपने इस परिषद के माध्यम से एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। इसका हमें सभी लोगों को समाधान है और आनंद भी है, खुशी भी है कि इस कॉन्फ्रेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ई गवर्नेंस, सुशासन आदि विषयों पर सिर्फ चर्चा नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर हमें ई गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल्स देखने को मिलेंगे और एक दूसरे से सीखने को भी मिलेगा। आइडियाज़ को शेयर, यहाँ पर एक दूसरे को शेयरिंग होगी और इसका लाभ सभी राज्यों को होगा। यहाँ पर 30 राज्यों के लोग यहाँ आए हैं और यूनियन टेरिटरीज के लोग हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। गवर्नेंस का अर्थ है प्रशासन, और जब प्रशासन की बात आती है तो उसमें अधिकारों की बात आती है। अगर हम प्राचीन भारत को देखें तो उस वक्त भी प्रांतीय, प्रादेशिक और जिला प्रशासन की सिस्टम थी। पूरे प्रदेश को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने ठोस सिद्धांतों के आधार पर अपनी शासन व्यवस्था विकसित की थी और इसीलिए वे एक निरंकुश सम्राट के बजाय लोक कल्याणकारी शासक के रूप में बहुत ही परिचित, लोकप्रिय थे और हमारे सामने उनका जो इतिहास है, और आज भी यही सिद्धांत हमारे देश के प्रशासन का केंद्र बिंदु है। हम सब जानते हैं ब्रिटिश राज में लोकल और रीजनल प्रशासन का विकास हुआ। संसदीय शासन और संघीय ढांचा ब्रिटिशों के लिए एक विरासत थी, लेकिन ब्रिटिश काल में अपने देश का प्रशासन लोकहित के लिए कम और इंग्लैंड में बैठे स्वामियों के लिए हित में ज्यादा था। यह हमें सबको पता है। स्वतंत्रता के पहले पुलिस राज था, स्वतंत्रता के बाद जनहितकारी प्रशासन हमारे व्यवस्था का आधार बन गया। लोगों के सहभाग को महत्व प्राप्त हुआ
पब्लिक पार्टिसिपेशन को बहुत ही महत्व आया और आज पब्लिक पार्टिसिपेशन यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का मूल मंत्र बन चुका है। आज जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन यह सब तभी सफल होगा जब लोगों का, जनता का पूरा सहभाग इसमें हमें मिलेगा और इसलिए हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए। ई गवर्नेंस से हमें स्पीड तो जरूर मिलेगी, लेकिन केवल स्पीड से भी काम नहीं चलेगा। सामान्य लोगों के जीवन में समाधान और खुशी मिले, उन्हें न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था हम आज के गवर्नेंस में चाहते हैं और इसकी ये शुरुआत है, ऐसा मैं कहूँगा। मैंने हाल ही में ई ऑफिस प्रणाली का रिव्यू भी लिया है। सभी सरकारी दफ्तरों में 1 अप्रैल से हम ई ऑफिस प्रणाली शुरू कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे राज्य के सभी दफ्तरों में स्पीड से काम हो जाएगा और पेपरलेस भी हो जाएगा। और जो लोगों के मन में जो भाव है कि सरकारी काम जल्दी होता नहीं, फाइल का बहुत प्रवास बहुत दिन चलते रहता है और इससे बहुत ही एक अंजाम के रूप में हम लोगों की मदद कर सकते हैं। ई ऑफिस का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो फाइलें और डॉक्यूमेंट स्मार्टफोन्स पर भी देख के और स्वीकृत किए जा सकते हैं। अभी हमारे प्रेजेंटेशन में भी उसका अनुभव आपने लिया है। अभी मेरे पास या हमारे मंत्री महोदय जी के पास आने वाली फाइलें 8 अलग अलग लेवल से घूमती हुई आती है। इससे निर्णय लेने में भी देरी होती है, लोग नाराज हो जाते हैं। तो हमने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह यहां भी फाइलें जो है ज्यादा से ज्यादा 4 लेवल्स पर भेजने का निर्णय लिया है। वैसे निर्देश भी हम लोगों ने दिए हुए। महाराष्ट्र में 450 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही है, उससे भी बढ़ाने की कोशिश हमारी शुरू है और निश्चित रूप से उसमें भी हमें सक्सेस मिलेगा। हम किसानों को मुआवजा या इंसेंटिव, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करके देते हैं, वो भी हमारा निर्णय है, उसको लागू भी है। मेरे ख्याल से जब हमें जो किसानों को मुआवजा 50,000 वाली हमारे जो निर्णय हुआ, एक ही दिन में मेरे ख्याल से 6 लाख लोगों को हम लोगों ने एक ही क्लिक पर पैसे उनके खाते में जमा किए, 2,500 करोड़ रुपए। एक अच्छी शुरुआत हुई है। हमारी कोशिश है कि ड्रोन के जरिए हम नैसर्गिक आपत्ति का परीक्षण या क्रॉप सर्वे करें। इससे एक परफेक्ट और क्लीन पिक्चर हमारे सामने आए, एक्यूरेसी बढ़े और कोई भी उसमें दुविधा नहीं आए, इसलिए भी हमारी कोशिश शुरू है। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि कॉमन पब्लिक को उनकी शिकायत का सुझाव या निवेदन पर क्या और कौन कार्रवाई कर रहा है, इसका टाइम टू टाइम मतलब रियल टाइम अपडेट नहीं मिलता है। इसलिए हम जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू देखिल करने की सोच में है और इन शिकायतों की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। शिकायतों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देने के लिए एक अलग सा डैशबोर्ड बनाया जाएगा। बराबर है ना मैडम? अपन करते हो ना ते? महाराष्ट्र में अलग अलग विभागों में 75,000 वैकेंट पोस्ट भरने के लिए भी हमारी सरकार ने IBPS, TCS जैसे कंपनियों से टाइप किया है ताकि ये भर्ती की प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द हो और ट्रांसपेरेंट हो। ये भी हमारा काम शुरू है। इससे ट्रांसपेरेंट और सिस्टमेटिक तरीका अपनाया जाएगा और ये लोगों को फायदा हो जाएगा।
गुड गवर्नेंस में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। हम चाहते हैं कि और भी सब स्टेट जो है एक दूसरे का फायदा आज की इस परिषद का हो, और आदरणीय मोदी जी की जो सोच है, उनका जो निर्णय है, उनकी जो अपेक्षा है, उसे हम सभी लोगों तक पहुंचाएं। सुशासन का अंतिम लक्ष्य आम लोगों के लिए उनका रोज के जिंदगी को आसान बनाना है। यहाँ पूरे देश से आप जैसे एफिशिएंट और नॉलेजेबल ऑफिसर्स आए हैं और कई लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। 2 दिन यहाँ हम ई गवर्नेंस के प्रति अलग अलग मॉडल्स देखने वाले हैं। एक दूसरे से सीख कर, एक दूसरे के से आइडिया शेयरिंग कर हम यहाँ से जाएंगे, तब आपके अपने अपने प्रांतों में आम जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर सिस्टम्स बनाएंगे और उस सिस्टम का फायदा अपने अपने राज्य के लोगों को होगा, अपने अपने राज्य की जनता को होगा। यही इस परिषद का सही मायने में मकसद है। सिटीजन सेंट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए नए डिजिटल उपकरण और प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को हम एफिशिएंट इफेक्टिव सेवा दे सकते हैं। यह भी इसी का उद्देश्य है। इस देश में, हमारे भारत में तकनीकी दशक वाले दृष्टिकोण को सशक्त और व्यापक रूप से डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर साकार किया जा सकता है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज भी हम लोगों ने देखा है, सुना है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार का मंत्र दिया है। इस दिशा में हमें काम करना है और मुझे विश्वास है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हम दुनिया का सबसे बढ़िया नागरिक केंद्रित ई गवर्नेंस मॉडल बनाएंगे। ऐसी सभी लोगों की कोशिश होनी चाहिए। G20 हमारे देश को प्रेसिडेंटशिप मिली है, यह भी हमारे लिए गौरव की बात है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इतनी ऊंचाई पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ले रखा है और देश की प्रगति और विकास दुनिया के नज़र में लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसीलिए तो हमें G20 का प्रेसिडेंटशिप मिला है और हमारे पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है। हमारे महाराष्ट्र को भी मौका दिया है प्रधानमंत्री जी ने, अन्य कई स्टेट है उनको भी मौका मिला है। महाराष्ट्र में भी हमारे प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे राज्य का ब्रांडिंग है, शोकेसिंग है। ये करने का मौका भी ये G20 के माध्यम से हमें मिला है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं पिछले हफ्ते दावोस भी गया था प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। वहाँ पर भी देखने को मिला कि हमारे देश के प्रति बहुत ही सम्मान और आदर दिखाई पड़ा। कई देशों के प्रमुख लोग थे, कई देशों के मान्यवर लोग थे वहाँ पर और प्रधानमंत्री जी के बारे में, हमारे देश के बारे में एक विश्वास उनके मन में दिखाई पड़ा। और महाराष्ट्र में भी 1,55,000 करोड़ के MOU साइन हुए। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने उनको कहा था, वी हैव ह्यूज पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कनेक्टिविटी, स्किल मैन पावर, ऐसी सभी जो चीज़ें हैं, आवश्यक बातें हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास है। और निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पर MOU साइन भी हुए। कई लोग मुझे मिले वहाँ पर, उन्होंने कहा भी हम मुंबई में, महाराष्ट्र में आकर आपके साथ काम करेंगे। यह भी हमारे लिए बड़ी बात है। कई अन्य राज्यों के लोग भी थे, उनके यहाँ भी उन्होंने भी अच्छी कोशिश की और हमारे देश की तरफ से वहाँ पर दुनिया में क्लाइमेट चेंज की भी एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। और मैंने वहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, हमारे महाराष्ट्र में क्या इनिशिएटिव लिया है ये क्लाइमेट चेंज के लिए, ये भी हमारी बात रखने का मौका भी मुझे वहाँ पर मिला। और इसलिए सभी जो हम ये जो परिषद यहाँ पर
ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा कहता हूँ, वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू कॉमन मैन। और मैं यही इसी पे दिस आर 3 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। और आप जानते हो, इसलिए मैं सबको मिलता हूँ, सभी लोगों से बात करता हूँ। थोड़ा समय मेरा ज़्यादा जाता है, लेकिन जो लोग मेरे पास आते हैं उनको मैं मिलता हूँ, हमारे अधिकारी मिलते हैं, हमारे लोक प्रतिनिधि को मैं कहता हूँ आप भी मिलिए, क्योंकि जब मिलते हैं तो ही तो उनकी बात जो है वो समझ पाते हैं। और समझने के बाद ही सभी 100% तो काम कोई नहीं कर पाता है, ना कर पाएगा, लेकिन कोशिश करना यही आने वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जाते समय वो खुशी खुशी जाता है कि हमारे लिए कोशिश तो हो गई। और यही तो हर सरकार ने, हर प्रशासन ने करने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री की हैसियत से काम कर रहा हूँ, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हैं। हम इस राज्य में हमारे लोगों के लिए जितना भी कर पाए, अच्छे निर्णय ले पाए। 4-5 महीने में बहुत बड़े बड़े निर्णय हम लोगों ने लिए, लेकिन लोक प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन भी उतनी तेजी से दौड़ना चाहिए, तब जाके बराबरी का काम होता है। और इसलिए हमारे सरकार में लोक प्रतिनिधि और प्रशासन, ये 2 विकास के, एक प्रगति के रथ के 2 पहिए हैं, और वो दोनों समान तेजी से दौड़ रहे हैं। और इसीलिए 4-5-6 महीने के भीतर हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी हमें कहा है, इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य के प्रगति के लिए, नए नए टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता है जरूर मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और सरकार, केंद्र सरकार के सभी अधिकारी यहाँ आए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 1 महीने के भीतर इतने तेजी से ये सब हो गया। और ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और इसलिए एक शुरुआत अच्छी हुई है, और आगे भी हम साथ साथ मिलकर काम करेंगे। सभी राज्यों के सभी प्रमुख लोग भी, सभी उनसे भी मेरा निवेदन है कि हम एक दूसरे की आइडिया शेयर करेंगे। क्या हमारे यहाँ होता है, क्या आपके यहाँ नहीं होता है, क्या आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। ये निश्चित रूप से इस परिषद के माध्यम से हमारे को ज्ञात होगा। और इसका फायदा आखिर में क्या है, आखिर में हम सरकार किसके लिए चलाते हैं? सरकार हमारे राज्य के जनता के भलाई के लिए चलाते हैं, उनके लिए अच्छे निर्णय लेने के लिए चलाते हैं। यही तो हमारा मकसद है। और इसीलिए इस परिषद में हमें सफलता मिलेगी, और निश्चित रूप से ये परिषद 2 दिन की ये कामयाब होगी, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। आप सभी लोगों को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया सर। महाराष्ट्र के संतों की वाणी है, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ। हम एक दूसरे को सहायता कर अपने देश को एक नई पहचान दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। मूविंग अहेड, I would like to request Shri Parag Jain ji, Principal Secretary IT Government of Maharashtra, to propose the vote of thanks. सबसे पहले तो मैं हमारे बहुत ही डायनेमिक और पीपल ओरिएंटेड माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस कॉन्फ्रेंस के लिए ब्लेसिंग दी, गाइडेंस दिया, और इतनी मूलभूत बातें जो की उसमें सर हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम आपकी कसौटी पे खरा उतरे। और आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके हमारे लिए इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। फ्रॉम द डीप ऑफ माई हार्ट सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं हमारे माननीय मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और यहाँ पे उपस्थित रहे। और सर, आपका जो सपोर्ट था, जो आपने डायरेक्शन दी है इस ई गवर्नेंस को, और जो आपका सपोर्ट हमेशा से रहा, उसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी मिस्टर वी श्रीनिवास और एडिशनल सेक्रेटरी अमरनाथ जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि सर आपने महाराष्ट्र को, स्पेशली मुंबई को, ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस मुंबई में कर पाएं। थैंक यू वेरी मच सर।
और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा सुजाता सोनिक मैडम का। मैडम आपने इतनी परसुएशन और ये किया मैम कि आई एम सो थैंकफुल टू यू। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द कमेटी ऑफ गुड गवर्नेंस। स्वाधीन क्षत्रिय जी सर, आपका सपोर्ट इसमें रहा और गुड गवर्नेंस का जो डॉक्यूमेंट बन के आएगा, आई एम थैंकफुल टू यू। श्री AK जैन सर, आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू सुरेश कुमार सर एंड KP बख्शी सर, जिन्होंने गुड गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि 1-2 महीना में एक बढ़िया डॉक्यूमेंट बन के तैयार होगा और उस डॉक्यूमेंट में जो आपका गाइडेंस होगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री विकास खारगे सर को भी थैंक यू बोलता हूँ, इतने बिजी शेड्यूल से सर आप यहाँ पे आए। और मैं सभी जो मेरे कलीग्स हैं यहाँ पे और जो सभी स्टेट से जो डेलीगेट्स आए हैं, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और मुझे लगता है ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, इससे कुछ ना कुछ आप टेक अवे होगा और जो टेक अवे होगा वो आप अपने स्टेट्स में इंप्लीमेंट करेंगे। ये कह के मैं थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग दिस ओकेजन। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, everyone.